Okay, so first of all, we'll do a brief recap what we did last time. So what? 1 second, guys. वो मिनिमाइज कर दो आप बॉटम में. I'm just trying to mute everyone. Okay, you can do it. Okay. Okay, so हमने लास्ट टाइम ये किया था कि हमने यहाँ से कॉपी किया. Try it yourself. ठीक है. Amazon. Electronics. And this is paragraph means products. Mobile, and for example, keyboard. Then you copy this. First of all, you try run and see what is coming out here. ठीक है. Electronics, यानी कि हमारा आउटपुट ठीक है. और हम यहाँ से कॉपी करके देन हमने नोटपैड में कॉपी किया एंड देन सेव एज में amazon.html. ये यहां तक सबको क्लियर था गाइस? Amazon आ गया और यहां पर हमारी हेडिंग आ गई एंड देन पैराग्राफ आ गया. ठीक है. Guys, is it fine यहाँ तक? Seems like everybody okay. Yes, sir. They're showing. Okay. So हमने लास्ट टाइम बोला था कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एडिटर्स, बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, कमेंट्स, कलर्स, CSS, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट. Links. Can you give a brief around links? Click on links. हाँ, अभी हम एक एक करके सारा कवर कर लेते हैं जल्दी से. ठीक है. Okay. Cool. तो ठीक है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है. हमने लास्ट टाइम जैसे बताया था, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used to create web pages and it describes the structure of a web page. Consists of a series of elements. Elements tell the browser how to display the content. Elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is everything in one go. So simple HTML document looks like this. इसमें ये explanation है. इसमें as such कुछ है नहीं, अभी डिस्कस करने वाला. हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी कवर कर लिया था. Then let's move to editors. Editors में Laliti, now you can do it. So I think editors में we have already given a quick overview how notepad के अंदर कैसे कॉपी कर सकते हैं हम लोग. वो अभी आपने किया था, तो I think we are good at editors. They don't need to understand anymore. Notepad is world class approach on PC because nobody have Mac or other laptops, right? So let it be Notepad. And if you click on basics, and there we can start quickly. Okay, so I hope everybody knows what it says. Your basics is do not make any error in terms of your syntax. If you start your tag, you must end it properly. So if you go to H1P in the code, it always close. If you see HTML 2 times, body 2 times, H1 2 times, check for it. If you have 5 times H1, it must be a problem because it's always even. So your tag should be even in nature. Like हमेशा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रहेंगे.
तो अगर हमारे पास H1 यहाँ देख रहे हो आप, मे बी आई कैन आस्क यू कंट्रोल, कैन यू गिव मी अ कंट्रोल हमें ऑन द स्क्रीन? Yeah. So it's easy. Okay, I have given it. Okay, so here you see this is one H1, right? What if I disclose this? And ये मैं भूल गया लिखना. So this is called basics. Basic is you always enable your tag and close it when you are done with this. Otherwise, if you go to try it yourself tab here, I may go and use H1 from here, right? Let me go and copy this tag and close it after P. Now what will happen? You see, सब कुछ बड़ा हो गया स्क्रीन पे. ये तो हमारा आउटपुट नहीं था ना. So this is called basics. Close your tag when you are done. Do not make this mistake. It's very, very drastic. You know, it changed everything on your page. That's the basic. So when you are done, electronics, close it. When you start with the product, laptop, mobile, whatever explanation, close it. So that's called basics of HTML, that do not make any declaration, headings, as well as the mistake around any of the tags opening and closing. You see this P is getting closed every time because it's a paragraph. The paragraph must open and close. Don't say like, you know, I have to write 5 sentences. Do not write all sentences in one shot. Like P हमने open कर दिया, P close कर दिया, then you are expecting कि 5 लाइन का 5 लाइन हम लिख सकते हैं. नहीं, it has to be one by one. If you see this, try it yourself. ये बोलता है कि पहला पैराग्राफ एक बना, फिर दूसरा पैराग्राफ बना. अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉपी करता हूँ 4-5 पैराग्राफ और लेट से यहाँ से मैंने कुछ कॉपी किए, तो यहाँ पे आप फर्क देख रहे हो, ये सब पैराग्राफ का फील दे रहे हैं आपको. अगर मैं एक भी पैराग्राफ का टैग डिलीट कर देता हूँ ना, ऐसा देखो, तो क्या होगा, पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा मेरा कोड का. क्यों नहीं बदला? बिकॉज अभी ये थोड़ा बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं ब्राउजर, तो आपको इतना एरर आता नहीं है. बट अगर आपका कोई सुपरवाइजर है, कहीं पे तुम काम कर रहे हो, कोड कर रहे हो, अगर वो ये चीज़ देखता है तो वो आपको एग्री नहीं करेगा, बोलेगा कि ये दोबारा लिख के लेके आओ कोड. देखा आपने, जैसे आपने पैराग्राफ यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, बट आपने तो ऐसे लिख दिया कोड, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी वैसे ही दिखेगा, बट ऐसे नहीं दिखा ना, बिकॉज आपने बेसिक्स नहीं किए. आपका बेसिक ये कहता है कि जैसे ही आप एक लाइन को खत्म करते हो, उसको क्लोज करके आओ. बस ये एक बेसिक है कि व्हेन यू आर डन, प्लीज क्लोज इट. यू माइट वांट टू स्टार्ट अगेन, तो आप दोबारा स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये एक बेसिक टैब है यहाँ पे. तो बेसिक के बाद मेरे को लगता है कि एलिमेंट्स यू नो ऑलरेडी. इफ समबडी आस्क यू इन योर, Here is a question. Question is कि हमें हर सेंटेंस के बाद वो पैराग्राफ का सिंटेक्स क्लोज करना है, और हम अगर हमें एक पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस हैं, तो हम एक बारी में एक सिंटेक्स यूज करके नहीं कर सकते ये वो. हाँ राइट. तो अगर हमें एक पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस हैं, तो हमें 5 बारी वो सिंटेक्स ओपन और क्लोज करना पड़ेगा. That's called basic. Yes, exactly. I hope everybody is clear on this. अगर नहीं है क्लियर तो प्लीज रेज योर वॉइस और रेज योर हैंड. Okay. Cool. Okay. And elements is something. यहाँ पे you have to open your Chrome. Yeah. So एलिमेंट्स क्या है कि जो आप इसको यूज करते हो ना, HTML, ये जो आप टैग जिसको बोलते हो, बेसिकली एलिमेंट भी वही समझ सकते हो. तो बेसिकली एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट दैट डिफाइंस होल HTML. तो टैग्स तो आपके कुछ भी हो सकते हैं. आपके टैग्स H1 हो सकता है, आपका टैग P1 हो सकता है, राइट. बट अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज योर रूट एलिमेंट इन योर HTML, तो बेसिकली योर HTML, फ्रॉम HTML से सारा कोड स्टार्ट होता है ना, दैट्स व्हाट यू सी हियर. तो ये आपका रूट एलिमेंट है. देन उसके बाद बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इफ समबडी आस्क यू व्हाट्स अ रूट एलिमेंट इन HTML, तो टेल देम हे HTML टैग इज द ओपनिंग ऑफ माय HTML, दैट्स कॉल्ड रूट. अब ये बोलता है कि इट हैज अ स्टार्ट टैग कॉल्ड बॉडी एंड एंड टैग ऑफ अ बॉडी. इनसाइड द बॉडी एलिमेंट देयर आर 2 अदर एलिमेंट. तो हम एलिमेंट्स को ये देख सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं.
तो इसके पास एक बॉडी एक एलिमेंट है जो क्लोज हो रहा है, फिर एक पैराग्राफ एक एलिमेंट है जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हमारे पास 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो द इंटरव्यू क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू सी हियर इन द कोड। तो आपको ये ऐसे काउंट नहीं करना 1 2 3 4 5 6 नहीं बोलने का, आपको बोलना है 2, बिकॉज एक आपका बॉडी जो बॉडी आपने क्लोज किया और पैराग्राफ जिसको आपने पैराग्राफ क्लोज किया, दीज 2 एलिमेंट्स राइट। एंड दिस HTML तो आपका रूट एलिमेंट है। तो कुछ भी आप लिखते हो, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाके क्या लिखता हूँ, ये P की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ div। div का मतलब समझते हो, हमारे घर कितने बाई कितने का है, 20 बाई 20 की घर है। तो ये 20 बाई 20 जो साइज होता है ना, वो div बोलते हैं। आप ऐसे समझो, रियल लाइफ में आपका घर का साइज, रूम का साइज, वो HTML में div होता है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है इंटरव्यू में, इसके ऊपर हमेशा पूछा जाता है, बिकॉज div ही आपको बताता है कि आपके पेज के अंदर पार्टीशन कैसे करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेज है, एक यहाँ पे आप लिख रहे हो और एक राइट साइड में पेजेस में देख रहे हो, तो ये आपके डिवीजन है। तो div मतलब डिवीजन, और पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे div भी लिखूंगा तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखा आपने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टाइल, भी स्टाइल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर। एक अपनी बाउंड्री करते हैं ना घर की, ऐसा वाला समझ लो आप। 2 पिक्सल सॉलिड। देख रहे हो आप ये डिवीजन, ये पैराग्राफ में नहीं आएगा, पैराग्राफ में एक अलग चीज़ है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो मेरा पेज होगा ना, उस पेज का मैं कलर भी यहाँ पे दे सकता हूँ। देखो मैं रेड कलर की बाउंड्री भी डाल सकता हूँ, वॉयलेट भी डाल सकता हूँ। तो बेसिकली ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये डिवीजन है, जैसे मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया। तो जितने भी टैग्स होते हैं HTML में, इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन एलिमेंट्स का एक तरीका है कि आप उसको हमेशा ओपन करो और उसको क्लोज करो। और जब आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हो, उनको टैग्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स आपके पैराग्राफ हो गया, डिवीजन हो गया, हाइपरलिंक हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। दैट्स वाई मैं आपको बता भी रहा था कि ये जो P मतलब टैग, P मतलब एलिमेंट, ऐसे नहीं समझने का है अपने को। P एक एग्जाम्पल है कि वो पैराग्राफ है। DIV डिवीजन भी एक एलिमेंट है। तो उसकी पूरी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे इन्होंने स्किप कर दिया ना, इन्होंने ओपन तो किया बट क्लोज नहीं किया। तो क्या होगा, कितने लोग यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, तो यूसी ब्राउजर चाइना का ब्राउजर है, तो वो इसमें प्रॉब्लम करेगा। गूगल क्रोम में अगर आप यूज करोगे ये वाला कोड तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आधे क्लाइंट्स दुनिया में वो होते हैं जो यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, आधे लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। आई थिंक मामा के पास मेरे ख्याल से गूगल क्रोम है और एज है, 2 ब्राउजर हैं। तो ये ब्राउजर स्पेसिफिक होते हैं, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि हाँ ललित, so the good practice is you always open and close the syntax no matter what. एग्जैक्टली तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा सिंटैक्स को ओपन करें और उसे क्लोज करें, और एम्बिग्युइटी नहीं रहनी चाहिए उसमें कि हम हमारे पास ऑप्शन है उसको क्लोज नहीं करने का। सो वेदर ब्राउजर एक्सेप्ट्स और नॉट, इट डजंट मैटर, बट गुड प्रैक्टिस इज टू ऑलवेज क्लोज इट। यस कूल। अब एक और चीज मैं बोलने जा रहा था कि ये लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि टैग्स क्या होते हैं। एलिमेंट तो आपने बता दिए। एक एलिमेंट का टाइप होता है जिसमें किसी में कंटेंट होता है, किसी में कंटेंट नहीं होता है। जिसमें कंटेंट होता है उसको पैराग्राफ डिवीजन बोलते हैं, जिसमें कंटेंट नहीं होता है, कुछ सामान अंदर नहीं होता है उसके अंदर रखने का, उसको विदाउट कंटेंट बोलते हैं। तो जो आपका ये एग्जाम्पल था, आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल है, अगर मैंने यहाँ पे गलती से एक ब्रेक लगा दिया, मतलब मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक कोड लिखा ब्रेक, और ब्रेक मैंने बंद कर दिया, एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये। देखा आपने क्या किया मैंने, ये जो BR है ये एलिमेंट है,
बट ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है HTML का जो खाली है, अंदर तुम्हें इसके अंदर लिखने का नहीं है, कुछ क्लोज करने का नहीं है, बट आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट होता है टैग कॉल्ड BR, जो हमेशा यूजफुल होता है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, स्टे कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, बिट डिफेंडर हैज योर बैक। तो ये साइबर सिक्योरिटी यू कैन रिलाई ऑन। इसके बीच में क्या बता सकते हो तुमने कौन सा टैग किया होगा HTML ने यूज? आई थिंक BR। आई थिंक विनीत हैज समथिंग टू से। या विनीत, गो अहेड। I see your hand is raising. Kapil, I think. No? No. Maybe by mistake. Okay, cool. But it's clear, right? ये जो मैंने बोला एग्जाम्पल यहाँ पे कि अगर दो लाइन के बीच में हमें गैप दिखाना है, तो एक तरीका ये है कि हम 2 बार P यूज कर लें, पैराग्राफ। अगर एक ही पैराग्राफ यूज करना है तो मैं BR भी यूज कर सकता हूँ। BR से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और ये आप देख रहे हो, ये उन्होंने वैसे ही यूज किया है। तो आप धीरे धीरे इन चीजों को समझ सकते हो अपने आप से कि जो चीज मैं देख रहा हूँ गूगल में, वो कैसे इसका HTML लिखा गया होगा पीछे बैकग्राउंड में। अब आगे चलते हैं। एलिमेंट के बाद आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो गया HTML एलिमेंट में। एक चीज मैं समराइज कर दूं। एलिमेंट्स का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स चाहिए होंगे। तो हर टाइप का जो बर्तन है, यूटेंसिल है, वो डिफरेंट होगा हर चीज के लिए। तो आप इसको इस तरीके से समझें, अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो हमें P चाहिए, अगर हमें हेडिंग लिखनी है तो H चाहिए, अगर हमें स्टाइल लिखना है तो कुछ और चाहिए, हमें अगर बॉडी लिखनी है तो बॉडी चाहिए। तो एलिमेंट्स जो हैं वो हैं। तो और इसमें लास्ट लाइन ये है कि कुछ कंटेन करते हैं एलिमेंट्स, जो यूटेंसिल्स फुल होते हैं, उनको आप कह सकते हो कि एट्रीब्यूट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो फुल हैं, और एक होते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, जो खाली उनका काम होता है कुछ हेल्प करना, जैसे ब्रेक। तो आई होप के एलिमेंट्स सबको समझ आ गए होंगे, या राइट? कूल। सो एक और चीज क्या थी? ओके, हेडिंग। क्रोम आपको खोलना है ना, आई थिंक। ओके, कूल। एट्रीब्यूट्स क्या है कि सब लोग जाते हैं गूगल में और ऐसे करके टाइप करते हैं Amazon, तो जो आपको पेज आता है ये क्या है? ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है और सबसे ज्यादा यूज करते हैं HTML में, कि भाई आप देखना कुछ और चाह रहे होते हो, कुछ और क्लिक हो जाता है। तो जो क्लिक आता है बीच में, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। अभी आप कुछ देख रहे हो, ऐड आ गया, उसमें बोलते हैं YouTube में स्किप ऐड, ताकि ऐड स्किप हो जाए। तो आप करते क्या हो, वो आप कैसे उसको कैसे समझ सकते हो? वो यही है कि ये जो ब्लू कलर की URLs है ना, जैसे आप अपना माउस लेके जाते हो और ये आपको बोलता है कि इस पे क्लिक करो, आपको कोई बोलता नहीं है, ये आप खुद समझते हो कि ये जो ब्लू ब्लू चीजें हैं ये क्लिक क्लिक हो जाती हैं। आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च, आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी इन दिस एरिया। यहाँ पे देखो चेंज होता है ना कुछ कुछ, google.com, विकीपीडिया, Amazon, राइट? ये जो लिंक्स होती हैं, ये दुनिया में सबसे बढ़िया चीज होती है। आप किसी बंदे को कहीं से कहीं भेज सकते हो, फेसबुक से Amazon, Amazon से फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से दिल्ली, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी भेज दो आप। ये आपको पावर एट्रीब्यूट एंकर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करके Amazon पे भेजना है, ये एग्जाम्पल है हमारा, Amazon पे भेजना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे जाऊंगा और मैं एक एंकर टैग क्रिएट कर दूंगा और इस एंकर टैग को यहाँ पे बंद कर दूंगा। और जो एंकर टैग के अंदर जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि Amazon पे शॉपिंग करने जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये एट्रीब्यूट है कि एलिमेंट कैन हैव अ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन। भाई एलिमेंट्स तो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, मोबाइल आ गया स्क्रीन पे। अब मोबाइल पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसको कुछ सामान खरीदना है या बेचना है, OLX खोलना है कि उबर खोलना है कि कैब बुक करना है,
वो बताओगे ना उस बंदे को जब आप क्लिक करोगे किसी पे, तो क्लिक करके जो आप बताते हो चीजों को क्या करना है, वो आपको बोलते हैं कि एट्रीब्यूट डेफिनेशन। तो आप किसी भी एट्रीब्यूट की डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एंकर टैग के अंदर जब कोई इस पर क्लिक करे ना, तो इसको मुझे amazon.com पे भेजना है, राइट? तो मुझे क्या करना है, अमेजोन की वेबसाइट पे गया मैं, बेसिकली amazon.com, यही यही है शायद वेबसाइट, कूल। तो नो, अमेजोन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अमेजोन। तो अभी कोई बंदा क्लिक करेगा मोबाइल कैटेगरी पे, तो मैं अमेजोन पे भेजना चाहता हूँ, तो मुझे वही करना है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू गो एंड गिव दिस एज अ URL टू amazon.com। क्यों नहीं आया? आई थिंक www भी डालना पड़ेगा। हाँ, आ गया। HTTP। रिमेंबर ये HTTP ना, मैं आपको बताया था, हाइपर, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है डेफिनेशन, बट मैंने बोला था कि HTTP सबसे बड़ा, सबसे पहला अल्फाबेट है इंटरनेट का। HTTP के बिना कुछ नहीं चलता, आपका कोड भी नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे amazon.com डाल दिया। अब मैं ऐसे इसको रन करूंगा, देख रहे हो आप? अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि इसके अंदर अमेजोन चल जाएगा। अभी हम लोग नहीं चला रहे हैं बिकॉज ये W3 स्कूल है, लेकिन इस कोड को आप HTML में सेव करोगे। बेसिकली अगर मैं ये कोड को कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको मैंने कॉपी किया और अमेजोन पे गया, सेव किया, ऑलराइट, अमेजोन पे ओपन किया। सो दिस टाइम अमेजोन जो ओपन होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक हो गया और ये हमें अमेजोन पे लेके आ गया। यू शुड क्लैप कि आपने पहली इंटरेस्टिंग चीज सीखी है ये। गाइस, ये स्टेप समझ आया? इसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं। आपने किसी भी टेक्स्ट को आप हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें, लेकिन कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर जाए। तो आपने ये कोडिंग कर दी कि व्हेनेवर समबडी क्लिक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमको अमेजोन वेबसाइट पे लेके जाए। इसकी जगह फेसबुक भी हो सकता है, इसकी जगह फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने उसको एक रेफरेंस दे दिया, उसको बता दिया कि आपको यहाँ पर कौन सी वेबसाइट का कोई भी वेबसाइट का एड्रेस डालोगे वो वहीं पर आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स याद रखना, HREF, एंकर, ए फॉर एंकर। ये कहीं यहीं पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इसका और डिस्क्रिप्शन। तो आपको एंकर, HREF एंड देन डबल कोट्स में आपको HTTPS के साथ पूरा वेबसाइट का एड्रेस डालना है और अपने नोटपैड में। तो ये नोटपैड में ही आप चेंजेस करोगे, जो भी करोगे अपने नोटपैड में, इसी में चीजें ऐड करते जाओगे। सो आफ्टर फ्यू क्लासेस यू विल सी ए लॉन्ग कोड। सो ये हमेशा इसी में ऐड करना, आप लोग नया नोटपैड नहीं बनाना। ठीक है, उसमें जो दो तीन चीजें हैं उसमें फिर उसके बाद ही ऐड करते जाना उसके अंदर, और सेव करके और बाहर आप उसे डबल क्लिक करोगे तो वो आपको प्रॉपर आउटपुट दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इजी इजी अभी तक, राइट? ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, 2-4 बारी प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। ओके ना? ठीक है, यस ललित। ओके, तो आई थिंक ये कुछ भी नहीं है। आई थिंक थोड़ा बहुत आप समझोगे ये चीज़ अपने हिसाब से, वन बाय वन। ऑफ कोर्स हम आपको एक बार एक, जैसे मामा ने एग्जांपल दिया वेसल का कि आपके पास डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं, मैंने एग्जांपल दिया कि आप अमेजोन पे देखो, यहाँ देखो, आप लिंक्स देखते हो। तो ये एग्जांपल्स आपके दिमाग में चीज़ों को बिठाते हैं, दैट्स कॉल योर इंट्यूटिव लर्निंग और वेरी वेरी इंटरेक्टिव लर्निंग।
बट आप इस चीज़ को खुद भी जाके देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि ये हेडिंग 1 2 3 4 5 6 कैसे हो गई। इसके डिफरेंट टैग्स हैं कि H1 करोगे तो बड़ा हेडिंग हो जाएगा, H2 लिखोगे तो छोटा हेडिंग हो जाएगा, H3 लिखोगे तो और छोटा हो जाएगा, H6 लिखोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद ही ट्राई कर लो। आप H1 की जगह क्या करना है, यहाँ पे आप इसको H5 कर दो, इसको भी आप H5 कर दो और रन कर दो, छोटा हो गया ये। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको, इसको बोलते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिबग, मतलब कि रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको, ट्रबल शूट भी बोलते हैं। और ऐसे लोगों को कंपनीज में बोलते हैं सपोर्ट, कि उनको कुछ नया नहीं बनाना, उनको अपने हिसाब से चीज़ों को देख के यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप कुछ चीज़ नहीं सीखी उसको जाके फिक्स किया। तो आपको बार बार नोटपैड नहीं बनाना, जैसे मामा ने बोला, आप इसको ही यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। बार बार कॉपी पेस्ट, मैं तो हमेशा यहाँ पे ऐसे ही करता था, पूरी लाइन कॉपी कर लेता था और इस लाइन को कॉपी करके 5 बार में पेस्ट करता था, क्योंकि मुझे चेक करना था कि H1 H2 के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं क्या करता, इसको H5 कर दिया, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में मैंने H4 लिख दिया। तो आप इसी चीज को कंटिन्यू करो, एक ही नोटपैड को, जैसे मामा ने बोला, आप उसी को कंटिन्यू करो और उसको कंटिन्यू करके आपको डिफरेंसेस ज्यादा समझ में आएंगे और आपको लर्निंग भी ज्यादा अच्छी होगी। देख लो, आपको क्लियर समझ में आया कि कितने डिफरेंसेस हैं। पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी बता दिया था। स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा, व्हाट यू कॉल इट, ब्यूटिशियन, लाइक यू नो, ये जो कोड है उसको ब्यूटीफुल कौन बनाता है, वो उसकी स्टाइल बताती है। हाँ, ब्यूटीफाई बोल दो आप, एक एप्लीकेशन ब्यूटीफाई, उससे आप, सही है भाई। तो ये बोलते हैं कि एक स्टाइल होती है और उसके अंदर एक वैल्यू लिखते हैं हम। अब वो वैल्यू क्या लिखते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको फेयर एंड लवली लगानी है कि आपको कोई ओला की ओले लगानी है या कुछ और लगानी है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो ऐसे स्टाइल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं कि आपके कलर्स हैं, आपके फ़ॉन्ट साइज़ है, आपका पिक्चर कुछ दिखानी है या वीडियो कुछ दिखानी है, वो सारा कुछ यही होने वाला है आपकी स्टाइलिंग में। तो जैसे आपको किसी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो इसका क्या होता है, बैकग्राउंड कलर कुछ भी डाल दो। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक एक कोड हमेशा आप ये याद रखो कि ये डबल कोट में होता है। ये याद करने का तरीका है कि कोई भी स्टाइलिंग आप डबल कोट के अंदर ही लिखोगे, कुछ भी मिस नहीं करोगे। पीछे आप सारा कुछ सही कर सकते हो, लेकिन एक बार सिंटेक्स गलत हो गया ना, तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे अपनी कोड को। आपको समझ में आएगा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ या कहाँ पे कर रही हूँ। बिकॉज प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ भी डाल दो सब चलेगा, लेकिन ये डबल कोड आपने जब मिस कर दिए ना, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि हो क्या रहा है कोड में। तो जैसे कि मेरे को अगर यहाँ पे कोई स्टाइलिंग डालनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स को मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर देना है या फिर इसको मुझे कुछ करना है बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल। ये लिखने का तरीका है, प्लीज़ देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बिकॉज ये आपको स्टाइलिंग समझनी पड़ेगी ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। तो स्टाइल के अंदर हमने डबल कोट डाल दिया, फिर हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद ये सेमी, ये डबल कोलन बोलते हैं हम इसको, रेड कर दिया। तो अब जो स्टाइलिंग हमने लिखी है वो ये लिखा है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड हो जाए। जब आप रेड रन करोगे इसका कलर रेड हो गया। अब So एक और, let's do one thing. जो हमारा पेज है मेन, उसका बैकग्राउंड पूरा चेंज करना। ओके, इसका, हाँ, जो हमारा बाहर नोटपैड है उसमें चेंज करके फिर हमें जो आउटपुट है वो हमें वहां नजर आए, उसका बैकग्राउंड का कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू या लाइट ऑरेंज डाल के आप ओके कूल, दिखाओ तो उससे। एक मिनट, आवाज है? हाँ, इसमें ना मैंने किया था कलर एक बार, हेडिंग में नहीं आता लेकिन कलर, जैसे खाली पैराग्राफ है ना, हेडिंग में, अंदर हेडिंग में लोगो आता है दीप, अच्छा, हेडिंग में लोगो आता है। हेडिंग में हमेशा ब्रांड आता है कंपनी का, जैसे मेरा कोई लोगो हो कंपनी का, फेसबुक का एफ है, तो वो एफ जो है वो कोड आएगा टाइटल के अंदर। आप एक इमेज को डाल सकते हो, एक बस बैकग्राउंड नहीं कर सकते, बिकॉज टाइटल जो होता है वो
पेज के ऊपर चलता है ना, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ये तो ब्राउजर का डेफिनेशन है, ये हमारे HTML कोड का डेफिनेशन नहीं है। बट गुड ठीक पॉइंट। है। ओके सो हाँ, तो हियर ललित एक काम करते हैं, इसका एक तो बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड कलर, और दूसरा एक इमेज इसमें ऐड करेंगे कोई भी। ठीक है, बैकग्राउंड चाचू मैंने कर रखा है इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, ओके, हाँ दिया तो अभी दिखा। पहले कर देंगे। हाँ कर दिया वो- मैंने चेंज। अब मैं इसको हम्म, यहाँ पे जाके चेक करते हैं, आ गया। अरे लाइट ऑरेंज कर दो भाई, ये तो ज्यादा थोड़ा शार्प हो गया। इसको ऑरेंज कर दो या कुछ। ग्रे ठीक रहेगा शायद, ERE चलेगा। ओके, हम्म, ओके ठीक है। अब इसमें कोई इमेज ऐड करते हैं। हाँ तो अभी क्या है कि आपको एक बैकग्राउंड इमेज डालनी है, राइट? अब मुझे भी नहीं पता कि बैकग्राउंड इमेज का टेक्स्ट सिंटेक्स क्या है। जैसे नीचे मैं है, इसमें नीचे नहीं, नीचे दिया नीचे हुआ है। है, इसमें हेडिंग। हाँ हाँ, लेकिन मैं इनको बोलना चाहता हूँ, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कुछ उस प्रॉब्लम से। तो अभी मुझे क्या करना है, लिखना है कि ऐड बैकग्राउंड इमेज टू HTML पेज। देखा, मैंने बस ये लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे करना है। हम्म, बट यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक आपके पास ऑलरेडी टैग है, जिसको आपको कैसे यूज़ करना है, बैकग्राउंड इमेज लाइक कलर, यू नीड टू रिप्लेस इट टू द इमेज। एंड उसके बाद आपको URL देना पड़ेगा, और URL का URL बेसिकली हाइपरलिंक। तो लेट मी गो बैक हियर, मैंने ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया स्टाइल तक। कलर ऐसे कॉपी करते हैं, ये सीखना है आपको, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे आता है। तो ये करना है कि हमें कोई भी चीज़, आई थिंक सबको बोलते हैं कि नकल नहीं करना, नकल नहीं करना, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्रामर सबसे ज़्यादा नकल करते हैं। बिकॉज अगर हम इसको लिखने बैठ गए ना, तो हमें नहीं पता हम कितनी मिस्टेक करेंगे। तो हमेशा इसको कॉपी करना सीखो, यहाँ से राइट क्लिक से ऐसे कॉपी करो, ताकि आपका एक भी सिंटेक्स का प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जाओ, और ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन के लिए आप पूरा पेस्ट कर दो इस कोड को। तो आपको पता है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, और सारा का सारा मेरा कोड भी क्लियर है। अब मैं इसको सेव कर दिया। अब सेव तो कर दिया, बट सेव करने के बाद इसमें इसका कलर, इसका जो पिक्चर है, पिक्चर चलना चाहिए। तो पिक्चर क्यों नहीं चला इसके अंदर? बिकॉज हमने वो उसकी URLs जो है, वो URL वैलिड URL नहीं है। तो आई थिंक गुप्ता मधुर हैज समथिंग। यस मधुर, यू हैव समथिंग टू से? नहीं नहीं, मुझे पूछना था भैया, इसमें जो URL है वो क्या चीज है? URL वो चीज़ है कि अगर आप किसी पे जाके गूगल इमेज जाओगे, और गूगल इमेज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज चले जाओ, आप मुझे बताता हूँ, एक इमेज चले जाओ। तो जब आप किसी एक इमेज पे क्लिक करते हो, ये इमेज का URL होता है टेक वेबसाइट। समथिंग फनी, टेक समथिंग फनी, नॉट गूगल, ओके, एनीथिंग। नहीं नहीं, मेरे को ये तो पता है, लेकिन या अगर जैसे जो मेरे पीसी के अंदर कोई फोटो है, अगर मुझे उसे बैकग्राउंड में डालनी है तो उसे URL से कैसे फिर करूं? उसमें हाँ URL नहीं डल सकता? राइट, वो डल सकता है। मैं आपको स्पेशल तरीका बताता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए रुको, हाँ मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। कॉपी ठीक है। लिंक एड्रेस लिया मैंने। तो ये लिंक जो है, जब मैं इसको ओपन करूँगा पिक्चर को, ये पिक्चर मुझे पता चल जाएगा कि ये पिक्चर है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आप अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो पिक्चर, और आप एक डायरेक्ट URL भी यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि गूगल का URL है। तो कई बार वर्क नहीं करता है, क्योंकि आजकल सेफ्टी ज़्यादा हो गई है। बट विल सी इफ इट वर्क। नहीं वर्क किया, बिकॉज ये जो इमेज और वीडियो, मतलब बेसिकली कोई कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, इन सबको आपको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना पड़ता है। और जब आप किसी पिक्चर की बात करते हो या वीडियो की बात करते हो,
तब हमें होस्ट करना होता है वो चीज़। आप ऐसे उठा के कुछ पिक्चर नहीं दिखा सकते, कुछ वीडियो नहीं दिखा सकते, बिकॉज वो कोड नहीं है, वो एक कंटेंट है। तो कंटेंट को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके कुछ मेथड्स हैं। उस मेथड्स के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ, बट उससे पहले इमेज, वीडियो, ऑडियो कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बोलता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो नाम है, उस चीज़ का नाम है आई फ्रेम। आई फ्रेम। हाँ, आई ये फ्रेम। आई फ्रेम ऐसी चीज़ है कि आई फ्रेम का मतलब ये होता है कि आई फ्रेम के अंदर आप जो दिखाना चाहते हो ना, वो दिखा सकते हो। अमेज़ॉन की वेबसाइट भी दिखा सकते हो अपने कोड के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हो आई फ्रेम है ये, और आई फ्रेम का टाइटल भी है, और इसके अंदर मेरी एक चीज़ चल रही है। तो अगर मुझे ये आई फ्रेम कॉपी कर लिया, और आई फ्रेम कॉपी करके मैंने अपने इस कोड के अंदर एक बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया सब कुछ। एक सेकेंड, मैं आपको बोलता हूँ तरीका क्या है। बैकग्राउंड, Bama, I need you to explain this later, but let me just finish this quickly. हाँ, So iframe is the answer for everything in terms of multimedia management, basically. हम्म, I think it's hanged. Can you give me control one more time? yeah, just, हम्म, Cool. So basically, I don't know. Oh, cool. Oh, this is working. Sure. Just give me a minute. आधे लोग बोल रहे होंगे आई फ्रेम हम क्यों आगे जंप करके, बिकॉज वो मधुर ने क्वेश्चन पूछा। तो मैं उसका आंसर भी देना चाहता हूँ, और साथ में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है हमें भी। तो जो आई फ्रेम का कोड होता है, आई फ्रेम ये बोलता है कि हमने पहले HREF से तो लिंक को रीडायरेक्ट कराया था। जैसे आपने क्लिक किया, वो आपको कहीं और लेके चला गया, लेकिन हमें कहीं और नहीं लेके जाना, हमें तो उसी को दिखाना है हमारी वेबसाइट में अमेज़ॉन। हमें अमेज़ॉन पे भेजना नहीं है उस यूज़र को। तो उस जगह हम लोग आई फ्रेम यूज़ करते हैं, ताकि आई फ्रेम से चीज़ें ईजी होती हैं और आपके ही वेबसाइट के अंदर चलने लग जाती हैं। तो अगर मैं इस बार अपनी अमेज़ॉन वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँगा, तो ये जो अमेज़ॉन अभी कनेक्ट नहीं हो रही है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, बट यहाँ पे वो अमेज़ॉन आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैंने केवल W3 स्कूल ले लिया, बिकॉज W3 स्कूल में हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ दे रखी है आपको यूज़ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया, और ये कॉपी जब हम करेंगे, ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज ये इंटरनेट का भी इशू है। ये आपके डेस्कटॉप में रखी है फाइल, लेकिन जब आप इसको इंटरनेट पे होस्ट कर देते हो, जैसे कोई ये GoDaddy होता है मामा जी, ऐसे कोई अलग होस्टिंग होते हैं, हम्म, उसको आप ये फाइल देते हो, तो वो आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन रहती हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ रन करता है। तो बेसिकली कुछ चीज़ दिखाना आपके पेज में, आई फ्रेम इज़ द सोल्यूशन फॉर मल्टीमीडिया और एनीथिंग। बट कुछ चीज़ को, कंटेंट को रेंडर कराना as you want it, like your YouTube video or something, तो iframe ही एक YouTube वीडियो भी देता है। तो मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप किसी YouTube वीडियो पे जाओगे, और YouTube पे क्लिक किया मैंने, और फॉर इंस्टेंस मैंने कोई बड़ी ये वाली वेबसाइट ले ली, ये वीडियो ले ली फॉर इंस्टेंस, तो इस वीडियो को जब आप नीचे शेयर करने जाते हैं, तो यहाँ पे एक कोड आता है आई फ्रेम एम्बेड, राइट? ये देख रहे हो आप, ये कोड आपके फाइल के अंदर होना जरूरी है, बिकॉज यही आपको आपकी वीडियो प्ले कराएगा। कुछ आपको नया लिखना नहीं है, यूट्यूब में जाओ, शेयर करो, एम्बेड यूज करो, और ये आई फ्रेम इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर इन योर कोडिंग, बिकॉज आई फ्रेम सब कुछ ध्यान रखता है आपका, जो भी आपको कंटेंट डालना है, किसी वेबसाइट से लेके आना है, कुछ भी। और जब हम इसको सेव करते हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोना इफेक्ट आवर कोड बैक हियर। कम ऑन, आ गया। देखो आ गया। तो ये हम्म, वेबसाइट के अंदर आ गया। ये क्यों नहीं आया? तो क्योंकि अमेजोन की सिक्योरिटी है। इसको प्ले भी करके दिखाओ यहाँ से।
ठीक है। दिस इज नाउ वेरी ब्यूटीफुल। सो ये एक चीज हमने सीख ली आज के, कैसे आपको यूट्यूब का वीडियो जो है अपनी वेबसाइट पे कोई डालना है। और अगर हमें हमारे पास कोई वीडियो हो जो कि डेस्कटॉप पे, उसको कैसे डालेंगे? या वो उसी के लिए मैंने आपको बोला था कि आ, हम्म, वो वीडियो फाइल जो हमें अपनी डेस्कटॉप से डालनी है, वो हम्म, डेस्कटॉप में नहीं चलेगी कोई फाइल। डेस्कटॉप से आपको किसी क्लाउड पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे HTTP करके कुछ ओके, हो। तो आप YouTube प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, तो हम अपनी खुद का HTML पेज बना सकते हैं, और हर हम्म, HTML पेज पे हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट होगी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ की। तो बेसिकली YouTube इज गोइंग टू गिव यू अ कोड विच यू कैन टेक इट टू योर HTML। तो YouTube बोलेगा ये कोड लेके जाओ, और ऐसे कि ऐसे ही बस आप अपने HTML कोड में डाल दो, और उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट जो आपको सेट करना है, बैकग्राउंड देना है, कुछ और देना है, आप कर लो। मैं आपके लिए कंटेंट होस्ट करूंगा। तो ये जो मल्टीमीडिया कंटेंट है ना, वो इतना इजी नहीं है, बिकॉज मल्टीमीडिया कंटेंट को रेंडर करने के लिए प्रॉब्लम है। आपके डेस्कटॉप से कुछ रेंडर नहीं हो सकता, बिकॉज तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा। जैसे फाइल सर्वर होते हैं, ये सर्वर होते हैं जिसमें फाइल रखते हैं, वो ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है। तो मैं बोलूंगा इन लोगों के लिए कि ये लोग क्लाउड को यूज करें। जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो दिखानी है वो दिखाएं, फेसबुक की कोई पोस्ट दिखानी है वो दिखाएं, बिकॉज फेसबुक की पोस्ट भी आई फ्रेम देती हैं। अगर कोई चीज ये लिंक्डइन पे पढ़ रहे हैं, लिंक्डइन भी आई फ्रेम देती है। तो सारी वेबसाइट ये आई फ्रेम देती हैं ताकि तुम इसको अपने HTML कोड में लेके जा सको। ओके, ठीक है। तो एक बार फेसबुक से करके दिखाना ललित, कैसे जाएगा? अच्छा मैं दिखा देता हूँ, रुको एक सेकेंड। Oh, I have released my control. Can you give me back? Okay, I think you have to log in. I don't remember my password for Facebook. Okay. So you can probably log in and you can then Wait, मैं अपनी तरफ से देखता हूँ एक बार, एक सेकेंड। Okay. I just pinged you in the chat one code. I think I need you to go to your Teams, go over here, get your code from here, copy link, go back. अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि ये जो एम्बेड कोड है ना, ये जो आई फ्रेम कर रहे हो आप यूज़, इस आई फ्रेम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास की, कि आपको ये समझ में आए कि SRC जिसमें आप ये URL देते हो, ये URL ही आपकी सबसे मेन कंपोनेंट है। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक सेम है, मतलब सब कुछ सेम रहेगा आई फ्रेम में। ये URL हमेशा चेंज होगी दुनिया के सारे डेवलपर्स के लिए, बिकॉज ये डिफाइन करेगा कि आप कंटेंट क्या दिखाना चाहते हो। तो आपने मुझे बोला कि मैं फेसबुक से लेके आऊँ, तो अगर मैं फेसबुक में जाके ये वाली URL कॉपी करता हूँ, तो ऑफकोर्स ये URL एक वीडियो दिखाएगा। ये वीडियो देख रहे हो आप, राइट? ये वीडियो दिखा रहा है। तो अभी इस वीडियो को, URL को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या किया? इस YouTube की जगह मैंने ये लिख दिया, और शायद मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सोर्स आई फ्रेम के अंदर। तो Facebook, YouTube, Amazon, LinkedIn, Instagram, TikTok is not the question here. The question is URL. आपके पास URL है क्या उसको पकड़ने के लिए कि क्या दिखाना चाहते हो आप? अगर है तो उसको डाल दो यहाँ पे, आई फ्रेम में डालो, किसी SRC में डालो और सेव करो। जब आप सेव करोगे तो ये वीडियो, यही चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे रन करने का स्टार्ट करेगा। और ये क्यों बोल रहा है वाई द फेसबुक इज रिफ्यूज टू कनेक्ट? बिकॉज जैसे आप समझते हो फेसबुक इतना इजी अब वो नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सिक्योरिटी है।
अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं। तो Amazon, Facebook इज नॉट पब्लिक, दे एक्सेस थ्रू द लिंक योर साइन इन। यूट्यूब आप विदाउट किसी साइन इन के एक्सेस कर सकते हो बिकॉज इट्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक। इसका बेसिकली रीजन ये है कि Amazon और Facebook जो है दे डोंट रिकॉग्नाइज आवर वेबसाइट, तो उनके हाँ अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं और वो नहीं चाहते कि हर कोई उनका कंटेंट को यूज करे। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी इशू है। और अगर YouTube में अगर हम जाएंगे तो वहां सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो हम YouTube का URL दे सकते हैं या किसी और वेबसाइट का जो अलाउ करती है वेबसाइट उसका URL इस पे डाल सकते हैं, वो रन करेगा इस पे। या दैट्स राइट। बट तरीका ये है, आप इसको ट्राई करो, और ऐसा नहीं है कि आप इसमें डाल सकते हो हाउ टू शो फेसबुक वीडियोस टू HTML पेज, राइट। आप डालो, आपको बेसिक पता चल गया कि ये आई फ्रेम बोलेगा, ये बोलेगा। देखो आपने बोला ना हाउ डू आई एम्बेड अ वीडियो फ्रॉम फेसबुक ऑन टू अ वेबसाइट। तो ये क्या बोल रहा है कि एम्बेड वीडियोस एक प्लगइन है, वो आपको आई फ्रेम क्रिएट करके बोलता है। आई फ्रेम इक्वल्स टू SRC इक्वल्स टू योर एम्बेडेड वीडियोस। सब कुछ एम्बेडेड है, EMBEDDED। ये सारा कुछ आपको याद करना है बिकॉज सब कुछ कंटेंट जो भी आपको मिलता है वो सारे प्लगइन से मिलता है। तो ये आपको बोलता है गेट अ URL टू द पेज, देन गेट द कोड, और जो आपको कोड मिलेगा वो कोड आपको कॉपी कर देना है। जैसे ये कोड है, फेसबुक की URL है, राइट, फेसबुक की URL है, इसने ये पूरा कोड यहाँ पे आपको दे दिया। तो आपको यहाँ से कॉपी क्या करना है, आपको वो जो आई फ्रेम है वो कॉपी करना है। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो href URL है जिसमें ये कंटेंट मिलेगा आपको, वो कॉपी करना है। तो इतना जल्दी आप कुछ भी मत करो। ये आपके फेसबुक से भी एम्बेड वीडियो मिलती है, जो वीडियोस पब्लिक होती हैं फेसबुक में। जैसे मेरे अकाउंट से कोई वीडियो डाली और वो वीडियो पब्लिक है, तो ये आपको छोटा सा एम्बेड वीडियो देता है जिसमें आपको वो कोड मिलता है, जो कोड आप इसमें रन कर सकते हो। देख रहे हो ये बंदे ने दिखाया है एम्बेड वीडियो करके अपनी पेज के अंदर। तो इसमें चेक मतलब इसमें जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि आप इसको किसी का कंटेंट दिखाओगे कैसे। कंटेंट जो कंसर्न है वो ये है कि आपको URL कैसे मिलेगा। और ड्यू टू सिक्योरिटी इतना इजी नहीं होता है कि आपको URL एज इट इज मिल जाए, आपको कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ता है। ये एक कैच है, बट मोर टू कवर। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, जो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। बट विदाउट अपनी ट्रैक से भटके हुए हमें ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है, क्योंकि जितना आपका फेसबुक का वीडियो नहीं कमा के देगा पैसे, जितना आपको ये स्किल सेट आपको जो बनाएगा वो तो एक छोटी सी बात है कि फेसबुक वीडियो दिखाओ, ये दिखाओ, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। आपको पता चल गया कि आई फ्रेम होता है, आपको पता चल गया SRC कोड होता है, आपको पता चल गया URL होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं करने फेसबुक के चक्कर में। तो अपने को कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान रखना है। सो समराइज करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि आई फ्रेम का सिंटेक्स यूज करें और URL अभी फिलहाल YouTube से लें, क्योंकि YouTube में बस सिक्योरिटी इश्यू नहीं है। तो वहीं से जो वीडियोस हैं आप उन्हीं को इंक्लूड करें अपने वेबसाइट पे। ओके, ठीक है। या ललित, नेक्स्ट टॉपिक। yeah, that's it from my end today. ओके, ठीक है। सो इमेज का भी सेम फंडा होगा कि आपको URL जो है वो कॉपी करना है कहीं से। ठीक है। किसी भी यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, इससे कर लो, मैं दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करो इसके ऊपर और पेज व्यू सोर्स जाते हैं। एक ये भी कर सकते हो आप, जब व्यू पेज सोर्स करते हो या ये फ्रेम्स रिसोर्स करते हो, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ आप समझ सकते हो टेक्निकली कि ये आई फ्रेम बता रहा है कि ये फ्रेम रिसोर्स बता रहा है, और ये आपको इमेज की पूरी डेफिनेशन दे सकता है। और हमेशा आपको क्या करना है, ये तो काफ़ी चीज़ें मैं कवर करूँगा बाद में, आप इससे घबराओ मत। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी इमेज के ऊपर जब राइट क्लिक करते हो तो आपको वो सेव एज ऑप्शन देता है। अब सेव एज ऑप्शन देने के बाद आप उसको अपने डेस्कटॉप से भी अपलोड कर सकते हो पिक्चर को, और लाइक अपने URL को। जैसे मैंने बोला कि ये
SRC जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको URLs को हैंडल करना। अभी ये जो इमेज chania.jpg है, ये W3 स्कूल वालों ने कहीं पे होस्ट किया हुआ है, इसीलिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमारे पास एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, अभी हम इसको सीख रहे हैं। इमेज डालना इज नॉट अ प्रॉब्लम एज फार एज यू नो द SRC, बट इमेज टैग को समझना इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास इमेज दिखानी है तो कौन से टैग से दिखाते हैं। उस टैग का नाम है IMG, उसमें SRC जो हम डालेंगे वहां से कोड उठ के आ जाएगा, और उसके एक्सटेंशन के साथ हम उसको URL पास करेंगे। फिर एक विड्थ और हाइट होती है, इतना पता चल जाएगा जब आप रियल एग्जाम्पल पे जाओगे, जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे। आई विल गिव यू दीज अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वन ऑफ द वेबसाइट, यहाँ पे आप होस्ट भी कर सकते हो, कंटेंट भी डाल सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। अगेन जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सब लोगों को यहाँ पे ये सब कुछ एक एक करके चेक करना है, और फाइल पाथ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आई फ्रेम भी देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, राइट। ये दे रखा है कि जो आपकी इमेज है, पिक्चर, आई थिंक ये वासु का क्वेश्चन था और आप भी पूछ रहे थे कि हम अपने डेस्कटॉप से कैसे पिक्चर उठाएंगे। तो डेस्कटॉप से पिक्चर ऐसे उठेगी कि जो फाइल पाथ होता है, वो फाइल पाथ आपको बताता है कि आपको पिक्चर कहाँ पे रखनी है और कैसे उठानी है। कैन यू प्लीज डाउनलोड मी अ पिक्चर मामा ऑन योर डेस्कटॉप एंड लेट्स यूज दिस URL क्लियरली। ये जो है, एक पिक्चर डाउनलोड कर दो आप, उसका URL सॉरी एक्सटेंशन JPEG कर देंगे, JPG पूरा राइट क्लिक करके सेव कर देंगे। Save image as loin.jpg. बस ठीक है। तो बेसिकली yes, there you go. ये देख रहे हो आप, माउंटेन की पिक्चर है, और ये SRC में पूरा पूरा यहाँ पे ये पिक्चर आप देख सकते हो, उस पिक्चर की ये URL है। तो अभी वो मामा ने पिक्चर भेजी थी, एक सेकेंड मैं इसको ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। ओके, कॉपी, यहाँ पे गए और इधर में डाला, और यहाँ पे हमने ये आई थिंक डबल H आ गया, ठीक है। राइट, देखा आपने क्या किया मैंने, कि ये जो SRC है, सिंस ये गूगल में ऑलरेडी होस्टेड है, जैसे आपने गूगल में देखा, इस पर राइट क्लिक किया और इस पिक्चर को ही केवल नए टैब में ऐड किया। ये स्टेप है, वास्तु तुम्हें भी समझना है। एक बार इमेज को मैंने ओपन किया, तो ये इमेज का URL मैंने कॉपी किया, जो सिर्फ ये इमेज दिखाएगा। नहीं तो ये वाला कॉपी करेंगे, ये URL कॉपी करेंगे तो पिक्चर नहीं पता चलेगी ना कौन सी पिक्चर पिक करनी है। तो राइट क्लिक ओवर हियर, गो टू Yes, sir. इमेज इन न्यू टैब, और ये इमेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब इमेज आपने अब दिखा दिया, और साथ में आपको वो जो अभी हमने डाउनलोड की थी पिक्चर, उसको भी देखना है। तो ये जो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जो स्टाइल विड्थ है ना, इसको मैं 100 भी कर सकता हूँ, ये जस्ट फॉर यू गाइस टू नो। इसको मैं बड़ा भी कर दूंगा, 400 मे बी 800 900, तो ये बड़ी हो जाएगी पिक्चर। तो ये हेयर हाइट विड्थ ये सब अपन देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें लेटर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये समझना। तो आई गो एंड कॉपी दिस वन इनटू द कोड, यहाँ पे हम डालते हैं इसको इधर, और पिक्चर की जगह था हमारा लॉइन, राइट, Loin.jpg. LION
JPG। नो, डबल कोड रह गया उसमें। नहीं हो गया, डबल कोट रह गया, सही है। देखा आपने कैसे किया मैंने? सिंस ये पिक्चर है और पिक्चर आपके स्क्रीन पे हो सकती है, ऐसे आपकी वीडियो भी आ सकती है, बट ऑडियो वीडियो आ भी जाएगा तो इसको आपके यूजर्स नहीं देख सकते ना, ये तो तुम्हारे डेस्कटॉप में है। तो अगेन इतना सब कुछ कंफ्यूजन ऐसे मत समझो, कंफ्यूज मत हो, बस ये समझो कि मैंने यहाँ पे लॉइन यहाँ पे भी दिखा दिया, आपकी वेबसाइट पे भी दिखा दिया, मैंने बड़ा भी करके दिखा दिया, छोटा भी कर लिया, कॉपी भी कर लिया, फेसबुक भी दिखा दिया। ये सब दिखाने का आपको नहीं सीखना है, आपको सीखना क्या है कि जब भी मैं कोई इमेज टैग यूज करूंगा उसको इमेज टैग से स्टार्ट करूंगा, सोर्स में उसकी लिखूंगा, साथ में उसकी स्टाइलिंग डिफाइन करूंगा, दैट डिफाइंस योर कोड फॉर योर इमेज। सिमिलरली जब मैं कोई आई फ्रेम के अंदर काम करूंगा तो आई फ्रेम के अंदर जो मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो उसकी यूआरएल्स होती हैं, उस यूआरएल को मैटर करना है। यूआरएल जो दो दोगे वही चलेगा ना, बट की क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आई फ्रेम की नीड्स क्या हुई, मतलब नीड क्यों है आई फ्रेम को। तो ये बोलते हैं कि आपके पेज के यस अंदर यस, एक पेज के अंदर दूसरा पेज, दूसरे पेज के अंदर तीसरा पेज, तो बेसिकली एक पेज के अंदर 100 पेजेस खुल सकते हैं, बट वो पॉसिबल कैसे हैं? वो आई फ्रेम से पॉसिबल है। तो क्वेश्चन इंटरव्यू का बता सकता हूँ मैं, कुछ ऐसा होगा कि हाउ कैन यू डिस्प्ले अ डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक Amazon, Facebook, YouTube in one of your HTML code and what element and tags you wanna use। तो आप बोलोगे भी मैं आई फ्रेम यूज करूंगा, आई फ्रेम के अंदर मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करूंगा, क्या मेरी यूआरएल है, क्या मेरा स्टाइलिंग है, और उसके हिसाब से मैं अपने HTML में ऐड कर दूंगा। तो इसी तरीके से आपको बस समझना है, बाकी रेस्ट वी कैन टेक केयर नेक्स्ट टाइम सिंस आई थिंक दिस इज टू मच फॉर टुडे। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूँ ललित, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। ठीक है, तो मैं इसे समराइज कर देता हूँ। समराइज में ये है कि आई फ्रेम आप यूज करके देखें और इमेज जो सिंटैक्स है वो यूज करके देखें इमेज। ठीक है, हिट एंड ट्रायल करें खुद। और यूआरएल का लेमन लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि एड्रेस। आप वेबसाइट को बता रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो उसका एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। जैसे आप कोई लेटर भेजते हैं तो कहाँ भेजना है उसका एड्रेस देना पड़ता है, तो एड्रेस जो है यूनिक होता है। तो इसी तरीके से वीडियो और इमेज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो हमें बताना होता है इमेज सिंटैक्स के अंदर और आई फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो इमेज सिंटैक्स में आप जो है यूआरएल भी यूज कर सकते हैं। यूआरएल में आपने उसका एड्रेस दे दिया, ठीक है, वहां से उठा के जहां से भी है। और दूसरा, अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो उसका नाम जो भी है वो बता देंगे आप इसमें। तो ये दो तरीके हैं इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आप अपनी वेबसाइट पे। इसी तरीके से वीडियो जो है वो आप डाल सकते हैं यूट्यूब से आई फ्रेम के थ्रू। तो आई थिंक अभी इतना ठीक रहेगा, हम इतना फास्ट नहीं जाना चाहते। और आज जो है सिर्फ इतना प्रैक्टिस करें, आप इसमें हिट एंड ट्रायल करें, और इसमें अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हेलो चाचू। हाँ जी। हाँ चाचू, मेरे को ना एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करनी है। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी इसके ऊपर, प्रोजेक्ट ईगल के ऊपर।